A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigray, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 9, and we are reading Chapter 4, that is Structure of the Atoms. Okay, and this is your final part. This is going to be a short question chapter, that is, this is your seventh part. Okay, so if you haven't watched any of the videos regarding this chapter, you may go to the playlist and check it out. We are also arranging monthly exams. So if you haven't given any of the exams, then you may download the particular app. Okay, this eTuition app, and then go to the bottom of the page. That is monthly exams. Click on that, and you have an exam on 9th October from 4 to 4:30. 4:45 p.m. Okay, so don't miss that, and do evaluate yourself. It will be very beneficial for you. All right, every month exams are being conducted, so do appear for the paper and evaluate yourself. And the syllabus will be previous month videos. Okay, all right. So what we are going to do today, we are going to discuss something, but before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, all right, let's start. So today we're going to discuss short questions of this particular chapter. What is the chapter that we are reading? That is structure of the atom. So what is the first question read? I hope that you will be able to answer the question in certain seconds as you finish reading the particular question. That is much more important. जैसे ही पढ़ते हो आंसर मुंह पे होना चाहिए. Okay. It's a very small session today. I hope that आप बहुत जल्दी answers दे पाओ. Read it. Electron attributes negative charge, protons attribute positive charge. An atom has both, but why there is no charge? Tell me. एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, दोनों अगर होता है तो क्यों कोई चार्ज नहीं होता? बिकॉज दे कैंसिल आउट इच अदर. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 12. KLMN शेल भर्ती करो. फर्स्ट शेल इज 2, rest 8 will fill the next 8 will fill the second cell. that दो 10 हो गया, उसके बाद 2 बचा लास्ट, यानी 282. all right, and what is 282? It's 12. Can anybody tell me what is 282? It's magnesium. Next, what do you understand by ground state of an atom? Do you know what is ground state of an atom? ओके, एक पर्टिकुलर एटम जब पर्टिकुलर अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहता है उसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम. द स्टेट ऑफ एन एटम वेयर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर एट देयर लोएस्ट एनर्जी शेल्स, इट इज कॉल्ड एज, जो मैंने भी बताया. नेक्स्ट, व्हाट इज द क्या लिखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेट इन द एन शेल? KLMN, दैट इज एन नंबर ऑफ शेल्स में हमने पता है पढ़ा है कितना होता है 32. K में होता है 2, L में होता है 8, M में होता है 18 and N में 32. That's 2, 8, 18 and 32, right? Okay. Write the correct representation of an element, that is X, which contain 15 electrons and 16 neutrons. कोई ऐसा मतलब correct representation बताओ जिसमें 15 electrons हैं और 16 neutrons हैं. क्या हो जाएगा वो? The correct representation of the element will be of the X is 31, 15, X. 31 जो होगा that is ऊपर होगा. ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिया है, वैसा नहीं होता है. सो ये 31 ऊपर, क्योंकि हमें पता है हमारा जो पर्टिकुलर मास नंबर है दैट इज इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा, बट प्रोटॉन हमारा जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है. तो प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, नहीं समझ आ रहा है, देखो हमें पता है मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया नहीं है, बट हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 15, मास नंबर बन गया. नेक्स्ट आ गया, हमें पता है एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों को मिला दो, इट्स 31. 31 ऊपर होना चाहिए, इट्स टाइपिंग मिस्टेक, इट्स 31, 15x. ओके, व्हाट विल बी वैलेंसी ऑफ एन एटम इफ इट कंटेन्स 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स? कोई भी पर्टिकुलर वैलेंसी कितना होगा? द वैलेंसी विल बी 1. 7 हो गया. हमें क्या चाहिए? हमें एक चाहिए टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड टू बी स्टेबल, दैट्स व्हाई इट विल बी 1. नेक्स्ट, गिव टू इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. हमें पता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उनकी कोई एप्लीकेशन बताओ. जैसे कि C12, C14, इनमें क्या होता है? कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग क्या होता है? पर्टिकुलर फोसिल फ्यूल जो होता है उनका एज जानने के लिए इट इज़ कार्बन डेटिंग स्टार. सो ये कौन से आइसोटोप्स यूज़ करते हैं? कार्बन के, दैट इज C12 एंड C14 जो कार्बन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग एज ऑफ दी फोसिल फ्यूल्स को काउंट कर सकते हैं. ओके,
एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. वन न्यूक्लियर रिएक्टर इज U-235. ओके. नेक्स्ट, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन हैवी वाटर. कौन सा पर्टिकुलर आइसोटोप है हाइड्रोजन का जो कि हैवी वाटर के रूप में यूज होता है. आइसोटोप का जो ड्यूटेरियम होता है इट इज 2,1H. अगेन इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, 2 पर रहेगा 2,1H. उसी को हैवी वाटर बोलते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप हैवी वाटर कहलाता है? ड्यूटेरियम. प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है. ड्यूटेरियम को 2,1H को बोला जाता है हैवी वाटर. Next, chemical formula for metal sulfide is MsO4. What will be the formula of chloride? क्लोराइड का अगर पर्टिकुलर सल्फाइड का अगर फॉर्मूला, सल्फेट का फॉर्मूला है MsO4 यानी क्लोराइड का MCl2. ठीक है ना. कहाँ थे आप? ये नहीं थे ना. ओके, दिस वन. वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट X इज 3. ठीक है, वैलेंसी दे दिया है 3 है. राइट द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड. ऑक्साइड कैसे लिखोगे? वैलेंसी अगर पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का 3 है यानी कि X उसका 3. ऑक्सीजन का हमें पता है वैलेंसी होता है 2. यानी हम क्या लिखेंगे? क्रॉस करके लिखेंगे. पहले X लिख देंगे, फिर राइट साइड में O लिख देंगे. X का हमें वैलेंसी पता है 3 विच विल बी क्रॉस्ड विद दैट ऑफ द O एंड O का 2 है, सो इट विल बी रिटन विद 2. Formula will be X2O3. Okay. Next, will 35Cl and 37Cl have different valencies? क्या इनका different valencies है? नहीं, ये बस isotopes हैं, अलग अलग forms हैं, but valency उन दोनों का same ही है. ठीक है. नेक्स्ट, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैनल रेज. कैनल रेज का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. कैनल रेज प्रोटॉन होता है यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये जो होता है कैनल रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स ऑपोजिट टू द कैथोड रेज. बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोला जाता है? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बांटने के लिए उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है. एंड विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. दैट इज ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पार्ट करते हैं जब हमारी कोई बॉन्डिंग होती है. एज वी हैव ऑलरेडी रेड, जब ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए हमें अदर शेयरिंग, डोनेशन या फिर लेने की ज़रूरत है. Now helium electrons, helium atom has 2 electrons and its valence, but its valency is not 2. Now helium का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, राइट. लेकिन उसका जो होता है वैलेंसी 2 क्यों नहीं है बताओ? इसलिए है क्योंकि उसका नंबर जो होता है 2 ही होता है एंड इट्स फिल्ड, इट्स ऑलरेडी फिल्ड. और वैलेंसी किसको बोला जाता है? हम जो पर्टिकुलर लेते हैं, हम या कोई मतलब हम गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, दैट इज वैलेंसी. वो ऑलरेडी फिल है एंड दैट इज अ इनर्ट गैस. ठीक है, इसी वजह से उसका वैलेंसी है 0. नेक्स्ट इज व्हाई डू आइसोटोप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. आइसोटोप्स का क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक 35Cl 37Cl, इनका क्यों मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहता है? बताओ. एटॉमिक नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर से क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला दिए तो हमें मिल गया एटॉमिक नंबर. तो इससे क्या होगा? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो यानी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, अंदर झाँक के देखो, कुछ नहीं है अलग. ठीक है, समझ गए? So I hope the concepts are definitely clear. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है regarding any of the particular session of this chapter, let me know in the comment section below. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा खींचा हुआ चैप्टर है, आपके लिए नया है स्ट्रक्चर एटम का पूरा. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट चार्जेस, बहुत सारे मॉडल्स. ठीक है, उसके बाद उनके कुछ ड्रॉबैक्स. फिर हमने क्या पढ़ा था बताओ? ड्रॉबैक्स पढ़ा, आइसोटोप्स, फॉर्म्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ऐसे बहुत आइसोमर्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स एंड ऑल. तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. और थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा, आपको उसके लिए एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी. ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर्ली पीरियडिक टेबल याद रखना पड़ेगा और एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखना आना चाहिए. आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रेडियो एक्टिविटी जो थोड़ी बहुत पार्ट है वो आपको रीड करना पड़ेगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू हैव टू रीड. ओके, दिस इज़ अ ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर. एंड आप आज जाके टेक्स्ट बुक ओपन करो. टेक्स्ट बुक ओपन करके आप धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को 1 by 1 कवर करो. इफ़ यू हैव मिस्ड एनी, okay, go for the theories properly, write all the postulates that has been given by different scientists like Thomson and all. ठीक है, उनके बारे में पढ़ो. बोर्स मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स पढ़ो, उनके डायग्राम्स बनाओ, उनके ड्रॉबैक्स लिखो. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली लिखना शुरू करो. ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी एसेंशियल. अगर आपको प्रॉपर्ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आएगा, वैलेंसी फाइंड आउट करने नहीं आएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो.
सो उसके लिए पीरियडिक टेबल याद करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है, और बैलेंस ही याद रखो, ठीक है, और उसके बाद धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते, 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 करते यू विल बी मास्टर्ड इन दिस चैप्टर। ओके, सो आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट सब क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, मंथली टेस्ट अरेंज कर मतलब मंथली टेस्ट अरेंज कर रहे हैं 9th of October फ्रॉम 4 PM to 4:45 PM, सॉरी, 4 to 4:45 PM। तो टू प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम टू अपियर फॉर द पेपर। जो भी प्रीवियस मंथ में हमने पढ़ाई की है एक महीने में, उसी से रिलेटेड उसी से क्वेश्चन आएगा। So don't miss that particular. It will be MCQs of 20 marks and the duration will be 45 minutes from 4 to 4:45 PM on 9th of October. So please do not miss that particular exam, क्योंकि इससे आपको evaluation होगी, whatever track record रहेगा कि आपने जो भी पिछले महीने पढ़ा है उसको आपको कितना याद है. So that is very important. So have a track record on whatever you have read and कीप स्टडिंग, कीप मेकिंग पर्टिकुलर नोट्स। अपने नोट्स को प्रॉपरली हैंडी करके बनाओ, पढ़ो, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपने कभी वीडियोस नहीं देखा है तो यू मे गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास एंड चेक इट आउट वन आफ्टर द अदर्स। आपको वीडियो सिंक्रोनाइज वे में मिल जाएगा, ठीक है। और इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन बिटवीन योर फ्रेंड्स, okay, and that's it. I'll be seeing you next in the next session with a new particular chapter. Until then, I hope your concepts are clear and see you next in the next session. Bye, take care.